So yes, time complexity and space complexity, one of the most important topics. You'll find that in much questions, this topic comes in between of the data structure. Like you cover firstly 6 to 7 topics that are mainly the basic topics of data structure, and then you have been introduced with time and space complexity. People usually avoid to deal with space and time complexity in the starting. But why are we starting with it? The reason is because from day one, my plan is key from day one, not today's day, but from tomorrow onwards. Every lecture will be specifically targeted to some specific question. By the end of the day, our agenda will be that complete lecture will be based on some that complete lecture will based on some question. Okay, so the remaining months, whatever remaining time we are having in our hand, my ultimate aim is that we are at least able to solve 300 plus questions on date code. ठीक है, एक बार आपने इतने क्वेश्चन सॉल्व किए, मोर देन इनफ, सफिशिएंट क्वेश्चन, अगर 300 क्वेश्चन भी एटलीस्ट सॉल्व कर दिए, you take any company, I can guarantee you'll be able to crack its first round. That is the DSA round. ठीक है, 300 क्वेश्चन more than sufficient है. People will say that 500 questions should be at least there. No need. 250 200 questions max, but we are going to solve, we are going to see 300 questions. So my ultimate target is that I'm not going to deal with a lot much theoretical part. Today's class you will feel that a bit it is theoretical, because every interview, you go any interview, if they are asking about data structure and algorithms, at the end of the question they will ask you about the time complexity. For sure they will ask you about the space complexity. What is the space concept complexity of this question? What is the time complexity of the question? So why am I taking this topic at the first lecture? Because in the every next lecture from tomorrow's onwards, every lecture, at the end of the program, at the end of the problem, we'll be seeing the टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. ठीक है, बिकॉज इट इज बीन आस्क्ड. ठीक है ना, ऐसा एक भी इंटरव्यू नहीं है जहां पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में नहीं पूछते. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज योर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. ये सिर्फ इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से ही इंपॉर्टेंट नहीं है, बट द पीपल हु आर जस्ट हु आर स्ट्रांगली टारगेटिंग इन द डेवलपमेंट सेक्टर, द सॉफ्टवेयर सेक्टर, सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सेक्टर, वहां पर भी आप एक, लेट मी गिव एन एग्जांपल. आपको सबसे पहले अगर अगर आप कोई भी एप्लीकेशन क्रिएट करते हो, ठीक है ना, उसके क्या क्या इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होते हैं कि बाबा उसका यूजर इंटरफेस कैसा है. ठीक है, बट सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट उसका जो एस्पेक्ट रहता है ना, उसका वो रहता है कि उसका रिस्पॉन्ड टाइम कितना है, हाउ इफिशिएंटली इट इज बीन रिस्पॉन्डिंग टू द यूजर. ठीक है ना, एंड दैट कम्स फ्रॉम द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओनली. दैट कम्स व्हेन यू आर एनालाइजिंग वट एवर कोड यू हैव रिटर्न इन द बैक. whatever code you have written in the backend, ठीक है, वो उसका एनालिसिस आप टाइम स्पेसिफिक कंस्ट्रेंट के साथ करते हो, तभी जाकर आपका यूजर इंटरफेस इज मोर इंटरैक्टिव टुवर्ड्स इट. इंटरैक्टिव इन द सेंस कि वो कितना फास्ट, आफ्टर ईच आफ्टर योर एवरी क्लिक यू आर ट्राइंग टू रिट्रीव द डेटा फ्रॉम योर डेटाबेस, राइट. सो वो कितने एफिशिएंटली आपको मिल रहा है, दैट डज नॉट डिपेंड ओनली ऑन सर्वर, but it is more than a server specific thing. It's depend on your whatever you have written in the backend, whatever queries you have developed, right, whatever script you have written, that specific thing will come from this topic. ठीक है ना. So just don't deal it with the aspect of just studying for the DSA or for the interview purpose, but overall this topic plays a very important role. ठीक है, so let's start with it. Just a second. Yeah. Now it is fine. ठीक. तो the first thing that we are going to look in is, yeah,
A thought for the day. Somebody has suggested that in the starting, keep a thought. Okay? So for you, every minute you spend wishing you had someone else's life is a minute you spend wasting your time. Okay, na? So don't do it. Every second, every minute that you have got, please think in such a way that it will be invested in developing your future. It shouldn't go waste. Okay, na? So thinking will decide that whatsoever thoughts you're thinking, that will decide that is that minute has gone into the list of waste or it's been gone into something fruitful. Okay, so why this? But because it's quite related, you'll be able to get the logic at the end of the lecture. Okay, so yeah, with that, let's move on to the next slide. So the first question that I have is, of course, what do you mean by time complexity? What do you basically mean by time complexity? And why do we even need it? Why is it needed? इतना डिस्कस कर रहे हैं, but what is the need of it and what it is actually? That two things we'll try to answer. Now few of you will say that time complexity is nothing but if you are having a code, the time taken by that code to get executed is nothing but time complexity. How many of you agree that this definition is right? Can I say that if you have written a code, okay, if let's say we have two students, let's say this is Parija and this is Tanish. Let's say we have these two students. They have been given with a problem statement, right? They have been given with a problem statement or an algorithm. They need to write the code for it, okay? And they have written the code. Now we have calculated the compile time, the runtime for the both codes. Okay, so Parija's code is taking 5 seconds maybe, and Tanish code is taking 3 seconds. So can I say Tanish code is more time efficient, more efficient, and whereas Parija's code time complexity is very high? Can I say this? Will I be able to? The answer is no. Yes. The answer is no. Why? Because this is not the way that we calculate the time. This is not the way that we conclude that yes, Tanish code is more efficient. No, this is not the way. Let's try to see this thing in more depth. Why is it not? Why we cannot calculate the time by just setting a time and trying to see कि उसने from start to लेके end तक जितना भी compile time ये है, why we cannot call it as the time complexity? Let's try to see this thing. For that, I will need an yeah. Let's try to see it over here. So let's take the same example. Let's take the same example. We have this code, okay, and it's been written by Pariju. Okay, we have another block of code, and this has been written by Tanish. Okay. Now, this both codes are actually. This code is also it's depicting towards a specific algorithm. Means it is also been written to actually implement a specific algorithm, and this code is also written to actually code the same algorithm where this has been doing, right? But as you can see that this code is taking 5 seconds to complete its execution, whereas this code is taking 3 seconds. Now, what can be the other things that we haven't discussed? What can be the other thing that we are not able to see yet? It might happen that why we cannot conclude that कि Tanish code is more efficient. Why we cannot conclude that Parija's code is the code time complexity is more, because there can be a number of constraints which we are not able to see it over here. It might happen that the machine that Parija is working upon, it might be like less, the configuration of that machine might be less than the configuration of the machine that Tanish is working upon. It might be like Parija is using i3 and the RAM is might be
8 GB, whereas Anish is using i5 and the RAM is 16 GB. तो of course Tanish code will run more fast क्योंकि उसकी machine क्या है, it's more powerful, so it has to run more fast, right? there can be other there can be other reasons also. How, what can be the other reason? It might have happened that कि परिजा ने वो कोड जावा में लिखा होगा और तनिष ने वो सेम कोड ही माइट हैव रिटर्न इट इन सी प्लस प्लस. तो हमको पता है कि सी प्लस प्लस इज उसकी स्पीड ज्यादा है एज कम्पेयर टू द कोड दैट वी आर राइटिंग इन जावा, राइट? सी प्लस प्लस इज मोर एफिशिएंट, ठीक है. It might have happened ki, let's say Tanish has got 5G internet, a good speed, even though VS Code does not require internet, but it might have happened ki, they have code on an online IDE, they are not having VS Code, right? So due to it, he's having much speed, his code editor is running more fast, whereas Parija might have only 3G internet support, इसलिए उसका कोड ने ज्यादा टाइम ले लिया, ठीक है. एंड देयर कैन बी वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि इट माइट हैव हैपन कि तनिष्क ने नंबर ऑफ इनपुट्स जब हम देते हैं, ठीक है, लेकिन उसने एक एरे यूज किया होगा, तो ही माइट हैव डिक्लेयर्ड द एरे फॉर द साइज ऑफ 5 ओनली, वेयर एज परजा ने उस सेम एरे का साइज शी माइट हैव टेकन 25, ठीक है. सो बेस्ड ऑन दिस आल्सो वी कैन से दैट द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ तनिष इज लेस whereas Parija. But this is not the right approach. This is not how we calculate the time complexity for a particular program. So if this is not the way, then how do we calculate it? Okay, na? How do we calculate it? So let's see it. I have something on the next slide. Yeah. So let's see then, if this is not the way to calculate the time complexity, then what is the way to calculate the time complexity? You might know that time complexity is nothing but it tells ki how efficiently your program is working. ठीक है ना? It's nothing but how fast your program is getting executed, not just based on the time, ठीक है ना? But based on the number of steps you are performing into that. That's what decides your time complexity. ठीक है. So it is, we always see that okay, time complexity है, time आया मतलब कि वो कितने टाइम में एग्जीक्यूट हो गया. This is the wrong approach. This is the layman approach. But as a programmer, what you should think, what is time complexity? It is nothing but the number of steps, the number of instructions. That is not कि एक कोड की अगर 50 लेंथ है, not based on the length, but based on the inputs that the program is taking, based on the loops that the program is running, based on the conditions that you have performed in that code, that decides your time complexity. Okay. So then, okay, we know what is time complexity, but what is the approach? How can we measure it actually? Okay. So we need to find a particular formula. We have to find a formula for number of steps that are needed to be done by the code for the given input. So we'll have to come up with a formula जो कि हमको बताएगा कि based on the number of inputs that we are giving to the program, based on the number of inputs that we are giving to the program, that will give me the time complexity of that specific code. So how to do it? Let's try to see this thing. Theoretically, we'll not be able to, theoretically we'll not be able to understand this thing. So let me take an example. Let's take an example to calculate n natural number. To calculate the sum of n natural numbers. Okay. So again, I will take two volunteers. Let's say for this question, Karan has given me an answer. Karan has given me an answer that, okay, Karan knows कि Karan has learned C++, he knows the basics. So अगर वो क्या करेगा, एक for loop लगा देगा, ठीक है. अगर n की वैल्यू लेट्स से Karan को 5 दी है, तो he knows he will use a for loop which will start from 1 and it should go till 5. And what he will do, he will use a variable known as sum, and he will calculate the sum of n natural number. Here n is given as 5. So he has calculated the sum of n natural numbers, and natural numbers start from 1. तो 1 से लेके 5 तक उसने sum calculate कर दी. This can be one approach. Can anybody tell me what are the number of steps that Karan will have to perform, or the compiler will have to perform in this case?
5 steps, right? There will be 5 steps that the compiler, the current code will have to, do, right? Then let's say we have somebody else. Uh, we have Pranav. प्रणव प्रणव ने एक और अप्रोच दिया सेम प्रॉब्लम को प्रणव हैज कम अप विद एन अनदर अप्रोच प्रणव ने कहा 5 स्टेप करने से अच्छा आई कैन डू दिस इन सिंगल स्टेप आई कैन डायरेक्टली यूज द फॉर्मूला I will use the formula that is n is equals n into n plus 1 by 2. This will give me what? This will also give me what? The sum of n natural numbers. If Karan has also given कि Karan को भी मैंने n की वैल्यू 5 दी तो Karan क्या करेगा डायरेक्टली फॉर्मूला में डालेगा 5 into 5 plus 1 by 2. This will give me the sum of n natural numbers. But यहाँ पर can you tell me how many steps Karan is taking? Karan is performing in his code. Only one step. So based on the number of inputs you are given, how many steps you are actually performing, that will decide your time complexity. ठीक है? Based on the number of steps, number of instruction you are giving to your code to perform, based on what? The value of n. N is nothing but your inputs that you are giving to your program. That will decide कि आपका कोड कितना एफिशिएंट है. इतना क्लियर है? Yes. हाँ. Yes. So सबसे ज्यादा अगर कुछ यूज किया जाता है, अब हम अगर हमको स्पीड डिनोट करनी है तो वी हैव हाउ वी डिनोट द स्पीड. व्हाट इज द यूनिट फॉर स्पीड? मीटर पर सेकेंड. हाँ, मीटर पर सेकेंड. मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर सेकेंड. दैट्स हाउ वी रीड. सभी चीज का हमारे पास कुछ ना कुछ यूनिट रहता है. सिमिलरली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का भी एक यूनिट रहता है. एक नहीं कई सारे यूनिट्स रहते हैं मेजर करने के लिए. ठीक है, उसमें से सबसे फेमस जो हम यूज करते हैं दैट इज बिगो. ठीक है ना, इसको कहते हैं बिगो. अभी ये क्या बताता है हमें कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी स्पेसिफिकली बताता है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप देखोगे कि आप एक चीज मेरे को बताओ कि अगर मैंने यहाँ पर n की वैल्यू लेट्स से मैंने n की वैल्यू यहाँ पर 100 कर दी तो हाउ मेनी स्टेप्स विल दिस प्रोग्राम परफॉर्म? 100. 100. Absolutely right. And how many steps will this program perform? 1. 1. So this program, the program which Pranav has written, is not dependent on the number of inputs. Or you can also say the relationship between the number of inputs that we are providing to the Pranav's code is constant. मतलब अगर आप inputs को कितना भी vary कर दो, प्रणव उसको एक कांस्टेंट स्टेप में कर देगा. ठीक है, सो यहाँ पर द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज नथिंग बट बिग ऑफ 1. वी आर आल्सो रिप्रेजेंट दिस एज, हम बेसिकली बिग ऑफ n लिखते हैं. तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या है? आप n की वैल्यू कितनी भी दे दो, आपका वो कांस्टेंट रहने वाला है. सो वी राइट इट एज बिग ऑफ n रेज़ टू पावर 0. n रेज़ टू पावर 0 इज नथिंग बट बिग ऑफ n. मैं बताऊंगा इसको और डेप्थ में बताऊंगा व्हाट इज बिग ओ वगैरह, बट अभी इतना समझ लो कि इसकी एज दिस इज कांस्टेंट, आप उसको कितने भी स्टेप प्रोवाइड करो वो कांस्टेंट रहेगा. सो वी रिप्रेजेंट इट एज बिग ओ ऑफ 1. और हालांकि यहाँ पर आप देख रहे हो डायरेक्टली डिपेंडेंट है. जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ रही है वैसे वैसे नंबर ऑफ स्टेप बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑफ द कोड भी बढ़ रहे हैं. ठीक है, तो क्या मैं कह सकता हूँ द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर दिस कोड विल बी बिग O ऑफ n. ठीक है, व्हाई? बिकॉज इट इज लीनियरली डिपेंडेंट. आप n की वैल्यू ले लो 5, हमारे स्टेप्स भी 5 हो गए, इंस्ट्रक्शन भी 5 हो गए. आप n की वैल्यू ले लो 100, हमारे इंस्ट्रक्शन भी 100 हो गए, स्टेप्स भी 100 हो गए. So it is directly dependent on the number of inputs. That's why the time complexity is linear and it is denoted as big O of n. Okay, let's see the next thing. So a brief definition. Time complexity is the measure of how the code running time of an algorithm grows as the size of the input increases. Or we can also say the rate of
the rate of the algorithm that has been growing based on the number of inputs that you are providing to the code. In simple words, if I have to say that you are having a specific code, ठीक है? अगर मैं इसको कुछ input provide करता हूँ, if I provide input, firstly it was having the time complexity as let's say it is having the time complexity k. So based on the number of inputs that I am providing, ये किस तरीके से बढ़ रहा है? Is it not changing anyway? क्या इसका ग्राफ सिर्फ कांस्टेंट है? कोई भी चेंज नहीं हो रहा. मैं इसको इनपुट प्रोवाइड कर रहा हूँ, बट इसका जो टाइम है ना वो कांस्टेंट है. It can happen that based on the input that you have provided, the program may grow linearly. जैसे हमने देखा, जैसे जैसे उसके input प्रोवाइड कर रहे हैं वो linearly grow हो रहा है. It may happen that can a program, if you are providing an input, can the time complexity get reduced? It can. It can happen that at certain point the program was something like this before it was growing, but जैसे जैसे inputs आपने कुछ ज़्यादा ही provide कर लिए उसकी time complexity कम होगी. We'll see the example for this also. So there can be n number of graphs. ठीक है ना? Let's try to see. But this is all dependent on the number of inputs that you are providing. The number of inputs will only decide कि how many steps you are writing in your program, and that will in turn give you the time complexity. So the rate at which the program, I can also define it. This is my favorite definition. The rate at which your program, ठीक है ना, or your you can say it as program size is growing based on the number of inputs you are providing. तो जितने आप नंबर ऑफ इनपुट्स प्रोवाइड कर रहे हो उसके बेसिस पर क्या रेट है, व्हाट इज द रेट दैट योर प्रोग्राम इज ग्रोइंग, दैट विल गिव यू द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. ठीक है? सो दिस इज व्हाट इज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बेसिकली. Now let's again take the same example. Just a second. Now here I am taking the same example. If what we have concluded in this example, what are the things that we have concluded? We have concluded that as you are increasing the size of n, as you are increasing the number of inputs that you are giving to your program, your time complexity was increasing. It was what? It was directly proportional. It was linearly dependent. But here we have found out that whatever inputs you are giving, the time complexity was remaining the same. It was fully constant. That was the thing we have concluded. We have already taken this example before only. Finding the sum of first and natural numbers. You can also quote this thing. Let's move on to the next slide. So we have seen कि okay बाबा, time complexity का तो पता चल गया कि एक brief idea आ गया कि okay this is what the time complexity is. हमने इसे briefly अगर summarize करना चाहा कि अब तक क्या पढ़े, कुछ नहीं, बस इतनी चीज पढ़े कि आप जैसे जैसे उसको इनपुट देते हो प्रोग्राम को उसकी साइज एक तो ग्रो होती है, एक तो कांस्टेंट रहती है, और इट मे कैन इन सम स्पेसिफिक केसेस इट मे हैपन दैट योर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज गेटिंग रिड्यूस्ड एज योर नंबर ऑफ इनपुट्स आर गेटिंग इंक्रीज. अभी तक सिर्फ हमने इतना देखा है और हमने ये भी कंफ्यूजन को निकाला है कि वी आर नॉट जस्ट डायरेक्टली कैलकुलेटिंग द टाइम, सेटिंग द टाइम आउट कि बाबा अगर इसका टाइम इसका प्रोग्राम अगर जल्दी टाइम में हो गया, इट इज ट्रू कि ओके हाँ वो जल्दी में हो गया, तो अगर हम सारे फैक्टर्स को अवॉइड करें तो इट में we can conclude that the program is efficient. But just to consider the only fact, okay, the time taken by this program is less, that thus it is efficient, we cannot conclude that thing, right? In the similar way, space complexity का भी काफी हद तक सेम, ठीक है? स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का भी काफी हद तक सेम है. सिमिलर टू टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, दिस इज नॉट द राइट वे कि अगर एक प्रोग्राम ने 17 बाइट्स लिया है तो उसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कम है, एक प्रोग्राम ने 233 बाइट्स केबी लिया है तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी कम है, या फिर एक प्रोग्राम ने 12 एमबी लिया है तो उसकी टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इतनी ज्यादा है. वी विल नॉट बी एबल टू कंक्लूड दिस. क्यों? क्योंकि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का भी सिमिलर है. लेट्स ट्राई टू दिस विद एन एग्जांपल. स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का क्यों सिमिलर है? लेट्स ट्राई टू सी दिस विद एन एग्जांपल. Yeah. So let's see.
if you all can just be with me. Let's say you have an array. You have given with an array, and the number of elements that this array is having is 5. Okay, so let me give some numbers into this array: 10, 20, 30, 40, 50. Okay. So if I want to calculate the sum of these elements, if I want to calculate the sum of this element, one way I can use is that first I will calculate the sum of 10. Okay, then I will add 20 to this, then I will add 30 to this, then I will add 40 to this, then I will add 50 to this. Okay. What it will become? What will be the total sum of it? 150. 150. 150. 150, right? 150 will be the total sum. Now, how many bytes memory I have utilized in this code? How many bytes I have utilized? Can anyone tell? 20. 20. 20. 20 bytes you have utilized, right? We can even do this in a more better way. Instead of declaring the array in the starting, what I will do, I will take the inputs in the runtime. ठीक है ना? मैं क्या करूंगा, यूजर से एक एक इनपुट लेके जाऊंगा. I will not store it in any variable. I am just creating only one variable in the starting, that is running sum. एक वेरिएबल बना दूंगा रनिंग सम. उसके अंदर क्या करूंगा, सबसे पहले स्टोर यूजर से लूंगा 10. ठीक है, यूजर से 10 लिया. फिर क्या करूंगा, उसी के अंदर मैं क्या करूंगा, आई विल डू रनिंग सम प्लस द नेक्स्ट नंबर. ठीक, नेक्स्ट नंबर मैंने एंटर कर दिया. नेक्स्ट नंबर क्या है, 20. तो ऑलरेडी 10 था, उसके अंदर 20 चला गया, मतलब कितना हो गया, 30. तो रनिंग सम के अंदर आ गया 30, राइट. अभी मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट नंबर फिर से इनपुट लूंगा, मतलब 30 के अंदर क्या डालूंगा, 40. मैंने अभी तक कोई भी स्पेस, आई एम नॉट स्टोरिंग दैट एनीवेयर. ठीक है ना, आई एम डायरेक्टली टेकिंग इट फ्रॉम द यूजर. दिस विल गिव मी व्हाट, 70. अब 70 के बाद मैं नेक्स्ट नंबर लूंगा यूजर से, आई विल टेक 50. गलत सम कर दिया क्या, 10 के अंदर 20 डाला, 30 हो गया. 30 के अंदर 40 डाला, कितना हो गया, 70 हो गया, राइट. 70 के अंदर 50 डाला, व्हाट आई विल बी गेटिंग इट, 120, राइट. यहाँ पर सम गलत बोल दिया था क्या, 3 6 6 plus 4 10 150. 30 ऍड नाही केला. 30 ऍड करायचं आहे अजून. Let's do it again. Yeah, I haven't added 30, right? तो यहाँ पर जब मैंने ऑलरेडी मैंने रनिंग सम के अंदर 10 डाला, राइट. Then I have included the next number. Next number is 20. I have added the next number. Then the sum I was getting was 30, right? उसके अंदर मैं फिर से next number डालूंगा, that is 30. It will become 60, right? 60 के अंदर फिर से next number डालूंगा, that is 40. It will give me 100. 100 के अंदर I will enter the next number, that is 50. And this is how I will get the complete sum, that is 150, right? अभी इसके अंदर मैंने how many space I have utilized? Can anyone tell? See, I haven't stored this anywhere. मैं इसको डायरेक्टली ऐड कर रहा था मैं रनिंग सम में. आई हैव क्रिएटेड अ वेरिएबल इन द स्टार्टिंग एंड आई वाज टेकिंग द इनपुट्स ऑफ दिस नंबर फ्रॉम द यूजर. आई हैवंट डिक्लेयर्ड द array also. One by one I was taking the input from the user and I was adding to the running sum. So how much space I have taken, utilized? 4. 4 bytes. So what you can conclude from this both example is that what will the main impact of to calculate the space complexity will be dependent on the number of steps you are performing, you know, the number of variables you are declaring. That will tell कि कौन सा प्रोग्राम more efficient है. ठीक है, more space, उसकी space complexity को that will basically denote, right? So we'll see this. अभी तो सिर्फ मैं ओवरव्यू दे रहा. आज का सेशन जो रहेगा वो स्पेस और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का सिर्फ इंट्रोडक्टरी सेशन रहेगा, राइट. That is all what we are going to see in today's session. So
जैसा मैंने कहा था, जैसे हम स्पीड को अलग अलग क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ ना कुछ वी हैव नोटेशंस, ठीक है ना, उसी तरीके से इन टू रिप्रेजेंट द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आल्सो we have got some notations, okay, that are nothing but the mathematical notations to represent the time complexity, right? So yeah, what is the use of this? First of all, let's discuss what is the use of it. Let me be more specific कि जो आपके ऑनलाइन कोड प्लेटफॉर्म्स रहते हैं, यू नो, उनको जजेस कहते हैं, ऑनलाइन कोड जजेस, दे डोंट यूज दिस मेथड, दे विल नॉट गो बाय दिस वे, बट जब भी हम कोई कोड लिखते हैं, ठीक है ना, अभी एक तरीका रहता है कि आप डायरेक्टली उसको एक यू नो किस पे लिखो, डायरेक्टली राइट it on a compiler and that will give you the time complexity, and the other way is you, while you are writing the code at that time only you calculate the time complexity. अभी इसका अप्रोच में हमको नहीं जाना, हाउ द प्रोग्राम, हाउ द एक्चुअली द कंपाइलर और द आईडी इज गोना कैलकुलेट द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, दैट इज नॉट व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न, बट हम उसको विदाउट रनिंग इट ऑन एन ऑनलाइन कंपाइलर, हाउ वी कैन, while we are coding, while we are writing the code at that time, how we can calculate the time complexity, ये अप्रोच को हम सीखने वाले. दिस इज नॉट व्हाट, कि ये जो आप ऑनलाइन कंपाइलर फॉलो करते हैं, दिस इज नॉट व्हाट वी आर लर्निंग. ये हमारे लिए है कि हम कैसे समझे कि हमारा वो टाइम एफिशिएंट है, स्पेस एफिशिएंट है, एंड व्हाट आर द वेज टू यू नो सी दैट थिंग, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी. ये चीजें कोई ऑनलाइन आईडी फॉलो नहीं करता, ठीक है, ये हमारे लिए. इसका हेल्प क्या रहता है कि whenever you are writing the code, see, if you are there in if you are giving the first round for the DSA, आप DSA का पहला राउंड दे रहे हो, तो उसमें क्या रहता है, if you run the program, even though they are giving the free time कि आप पहले रन करो, और उसमें टाइम जाता है, but while you are coding only if you are able to see कि हाँ यहाँ पर एरर की साइज इतनी रहनी चाहिए, यहाँ पर मेरे 2 एक्स्ट्रा स्टेप्स जा रहे हैं, किस स्टेप्स में जा रहे हैं, यहाँ पर मैं फालतू में 2 एक्स्ट्रा लूप लगा रहा हूँ, ठीक है, या फिर यहाँ पर मैं 2 बार इस लूप को एक्स्ट्रा जा रहा हूँ, यहाँ पर एक, ये जो मैंने 2 कंडीशन लिखे, ये कंडीशन मेरे एक में हो जाती थी, तो इस नंबर ऑफ स्टेप्स यू आर रिड्यूसिंग बेसिकली, so that will in turn reduce the time complexity, right? तो ये चीजें स्लोली स्लोली जैसे जैसे हम उसको पढ़ेंगे, तो while we are from the next lecture, while we are having a particular question, while writing the code only we'll be able to explain experience कि हाँ यहाँ पर हमारी स्पेस एक्स्ट्रा जा रही है, यहाँ पर हमारा जो कोड का टाइम है वो बढ़ रहा है, so there only we will neglect that thing, right? So that is the use case of it. So different notations, क्या क्या अलग अलग notations है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए. Let's see that thing. So the first one is big O. इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बड़े O से. काफी इजी है, बहुत ज्यादा इजी है. इसी के बारे में हम सबसे ज्यादा डिस्कस करने वाले, सबसे ज्यादा, और यही सारी जगह पे यूज होता है, मोस्टली जगह पे यही यूज होता है, बाकी तो थियोरेटिकली है, बाकी हम ज्यादा यूज नहीं करते, ठीक है. तो इसी को हम सबसे इम्पोर्टेंट, मतलब सबसे ज्यादा इसको समझेंगे, ठीक है. तो सबसे पहले तो इसका ग्राफ रहता है, let's say the x-axis represent the number of inputs that you are feeding to your program, and the y-axis represent the time, as you are increasing the number of inputs, how the time is increasing, वो हम देखेंगे. तो सबसे पहले आपके पास रहता है रेफरेंस फंक्शन. You have got a reference function. You have got a reference function. Let's denote it by f. And how many inputs it is taking? It is taking n inputs. You have got a reference function which is taking n inputs. Okay? Now you have wrote your own program. And the time complexity, the function that represent the time complexity is this loop. This is the loop. We will draw it in a better way. This is your own program. Let's represent it by G. And the number of inputs that you are providing to this program is also n. That is also n. यहाँ पर भी मैंने n inputs provide किया, यहाँ पर भी n inputs provide किया. बट जो आपने जो प्रोग्राम लिखा है, उसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का फंक्शन है
दैट इज टेकिंग व्हाट इट इज टेकिंग मोर टाइम. जैसे जैसे इनपुट्स को बढ़ रहे हैं, वी आर एबल टू सी एट सर्टेन पॉइंट, लेट्स डिनोट दिस पॉइंट एज n0. आपने देखा कि n0 एक ऐसा पॉइंट है जहां पर उसने हमारा जो रेफरेंस फंक्शन था उससे उसको एक्सटेंड कर उससे उसको क्रॉस कर दिया, उसने ज्यादा टाइम ले लिया. तो अभी ये ग्राफ का डिनोट करता है कि हमारा जो अभी हमने जो प्रोग्राम लिखा है ना, वो बड़ा हो गया रेफरेंस से. तो ये इसका क्या हो गया, दिस इज नथिंग बट इट्स अपर बाउंड. मतलब अभी हमको पता है कि ये जो हमारा प्रोग्राम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो फंक्शन जो डिनोट करता है जी ऑफ एन को, वो इससे कम तो नहीं होने वाला, इसके हमेशा ऊपर रहेगा. सो वी हैव गिवन एन अपर बाउंड टू दिस, कि दिस विल डिनोट कि हमेशा हमारा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारे जो हमने जो कोड लिखा है उसका हमेशा विल ग्रेटर देन दिस अपर बाउंड. इट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन दिस अपर बाउंड. अब अपर बाउंड क्या रहता है इसको हम समझेंगे. तो इसका एक अगर मैं एक एग्जांपल देना चाहूँ कि इसको अगर हम एक एग्जांपल से रिलेट करें तो सी आई विल गिव यू अ लाइव एग्जांपल. यहाँ पर एक फालतू एग्जांपल से देने से अच्छा आई विल शो दिस यू लाइव. सो इफ यू सी द टॉप रेटेड यूजर्स जिनकी काफी काफी ज्यादा रैंकिंग है, काफी ज्यादा रेटिंग है. सो वन ऑफ दिस इज दिस टूरिस्ट. अभी इसकी रैंकिंग काफी कम हो गई है, इज ऑन 12, बट वो पहले बहुत अच्छा परफॉर्म करता था, ही वॉज वेरी गुड. उसकी रेटिंग देखो, हिज रेटिंग इज वेरी गुड रेटिंग. तो उसका अगर आप ग्राफ देखोगे, ही इज लाइक इट हैज बीन अ लॉट ऑफ टाइम इज कोडिंग. 2012 से कर रहा है. So, उसको काफी ज्यादा टाइम हो गया. पहले नहीं किया, पहले मतलब अभी अभी कम उसकी रैंकिंग आई है, बट पहले उसकी रैंकिंग बहुत ज्यादा होती थी. ही वॉज ऑलवेज इन द टॉप वन. यहाँ पे देखो, टॉप वन, टॉप वन, टॉप वन. अगर आप हवर भी करोगे ना, तो बी एबल टू सी कि उसकी रैंकिंग हमेशा वन रहती थी. वन रैंक, वन रैंक. तो काफी पुराना प्रोग्रामर 2012 से करते आ रहा है वो. और अभी आप देखोगे ना 2014 के बाद he has moved on to this red zone. This red zone किसको डिनोट करता है? This red zone is nothing but a legendary grandmaster. This red zone represent the legendary grandmaster. एंड जो ये लाइट रेड है ना, ऑरेंज भी कह सकते हैं इसको, ये इंटरनेशनल ग्रैंड मास्टर्स रहते हैं. इसके अंदर जिनकी भी रैंकिंग रहती है, रेटिंग रहती है, वो दैट आर नथिंग बट द इंटरनेशनल ग्रैंड मास्टर एंड दिस आर लीजेंडरी ग्रैंड मास्टर. तो अभी लीजेंडरी में तो उसका अगर ग्राफ देखोगे ना, तो इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन दिस ऑरेंज वन. इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन द इंटरनेशनल ग्रैंड मास्टर 2014 से. तो दिस इज हिज अपर बाउंड. ये इसका अपर बाउंड है. ये हमेशा इसके ऊपर रहता है, हमेशा इसके ऊपर रहता है. इसके नीचे कभी भी नहीं आता. आ रहा है क्या देखो, और आगे भी नहीं आएगा. नेवर ही विल कम. नहीं आ रहा. he will be always ahead than this. So this is nothing but this is representing your upper bound represented by big O. ये चीज समझिए. ये आपको बेसिकली लोअर बाउंड प्रोवाइड करता है, सॉरी एक अपर बाउंड प्रोवाइड करता है, जो कि आपको बताता है कि इससे नीचे तो आप आ ही नहीं सकते, इसके नीचे तो आप आ ही नहीं सकते. मतलब लेट्स से अगर मैं इसको एक और एग्जांपल दूं कि आपके टेस्ट के अंदर मार्क्स आए हैं, लेट्स से आपके टेस्ट के अंदर मार्क्स आए हैं, मैं आपके मार्क्स आए हैं 50. अभी आपको कोई फेवरेट सब्जेक्ट है, लेट्स से योर फेवरेट सब्जेक्ट है डीएसए. तो डीएसए में आपके मार्क्स 50 है आउट ऑफ 80. तो आपको पता है कि आपको पता है कि मेरे 40 से नीचे तो मार्क्स आ ही नहीं सकते. इट विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन 40, ऑलवेज यू आर प्रीटी श्योर अबाउट दिस. सो दिस 40 इज नथिंग बट योर अपर बाउंड. इसके ऊपर ही रहेंगे हमेशा. दिस इज नथिंग बट योर अपर बाउंड. आर यू गेटिंग द थिंग? इसके ऊपर कितने भी रह सकते हैं, यू माइट गेट 80, बट आपको 80 की गारंटी नहीं है कि 80 आएगी या नहीं आएगी, बट 40 की अबाउट है कि इसकी गारंटी है. दिस बिकम्स योर अपर बाउंड. आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू.
We will see this in depth, but अभी Yes, पहले हाँ yes, yes. so now you are able to understand this graph. ये क्या करता है बेसिकली, उसको अगर मैं ज्यादा इन डेप्थ नहीं बताना चाह रहा हूँ इसको, क्योंकि इन डेप्थ कोई पूछता भी नहीं, बट हमको सिर्फ उसको विजुअलाइज करके आना चाहिए कि आपके पास एक रेफरेंस फंक्शन रहता है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग एज एफ ऑफ एन, नंबर ऑफ इनपुट्स इज रिप्रेजेंटिंग एन, यहाँ पर इनपुट्स रहते हैं और यहाँ पर टाइम रहता है, एंड दिस इज योर फंक्शन, दिस इज जी ऑफ एन। तो हमको पता है कि अभी इसने यहाँ पर कट दे दिया एट एन जीरो, दिस हैज गिवन अ कट, तो अभी इसके नीचे नहीं आएगा, ये आपका सबसे ये ऐसा बॉन्ड हो गया कि इसके नीचे आप नहीं आओगे, तो यू कैन रिप्रेजेंट योर फंक्शन जी ऑफ एन, यू कैन रिप्रेजेंट इट एज k इंटू एफ ऑफ एन। मतलब k क्या है यहाँ पर, एक कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट चीज से आप बड़े हो, आप कांस्टेंट चीज से आप बढ़ रहे हो, दैट रिप्रेजेंट आपका जो प्रोग्राम है, आपका जो कोड है, एक कांस्टेंट फंक्शन से कांस्टेंट रेट से आपका फंक्शन बढ़ रहा है ना, दिस इज व्हाट दिस इज रिप्रेजेंटिंग। इसमें इन डेप्थ जाएंगे हम, बट नॉट टुडे, अभी सिर्फ ओवरऑल देख रहे हैं, ऊपर ऊपर का देख रहे हैं कि व्हाट इट इज, दिस इज नथिंग बट ओमेगा, ठीक है, गॉट इट, sorry this is big O, this is nothing but what we have seen just now is big O, getting this thing, let's move on to the next thing. Yes. The next thing that you have is omega, और उसको ऐसे ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा, you have this graph, and again this represents your number of inputs, and here it represents time, here it represents time, and this is your inputs. So now you again have a graph, and you have basically two functions, the first is your reference function, I call it as reference function, okay? So this is your f of n, and you have written your own function, your own code, and that looks something like this, okay? And at instance n0, your code is basically moved below the f of n, so इसको हम कहते हैं basically lower bound. अब लोअर बाउंड का कैसे है, जैसे हमने पहले देखा था, थोड़ा थोड़ा रिलेटेड उससे, मतलब थोड़ा उसके अपोज में आता है, ये पहले वाले इसमें हमने जब देखा था बिग ऑफ एन में, वो क्या दे रहा था हमको, अपर बाउंड दे रहा था, मतलब इसके नीचे तो आना ही नहीं है, इसके ऊपर ही रहूंगा मैं, पर यहाँ पर ये क्या कहता है, अभी जो आपका जो फंक्शन है जी ऑफ एन, दिस विल बी ऑलवेज लेस देन एफ ऑफ एन एट इंस्टेंस, एंड दैट कितने से लेस रहेगा, ये एन नॉट से, इससे हमेशा लेस रहेगा, so this is your lower bound. ये आपको क्या बता रहा है कि इससे आगे तो आप जा ही नहीं सकते, ये आपका एक लोअर बाउंड हो गया कि इससे ऊपर आप नहीं जा सकते, इससे हमेशा ही नीचे रहेगा आपका जी ऑफ एन जो फंक्शन है, इट विल बी ऑलवेज लेस देन एफ ऑफ एन. तो हाउ कैन आई रिप्रेजेंट दिस, अगेन द सेम थिंग, अपोजिट ऑफ इट, जी ऑफ एन इज इक्वल टू एफ ऑफ एन, बट नाउ योर फंक्शन विल बी k टाइम्स, जैसे हमने पहले देखा था, बट अभी आपका फंक्शन k टाइम्स रहेगा एफ ऑफ एन के, getting the thing, सिर्फ मैंने k साइड में मूव किया, even though if you don't get it forget it, but you should have the idea. What can be the example for this? um, okay, so let's say tomorrow you have got a good job, now you are always having a plan to build your dream house, okay? You always had a plan to build your dream house. now आप एक अपने दोस्त के पास गए जो एक सिविल इंजीनियर था, उसने आपको एक पूरा का पूरा घर का मैप बना के दिया, आपने उससे सबसे पहले क्या क्वेश्चन पूछा, आपके अकॉर्डिंगली उसने मैप वगैरह बना के दिया, आपने उससे सबसे पहला क्वेश्चन पूछा कि भाई मेरे को इसकी एक कॉस्ट बता, मेरे को एक कॉस्ट बता कि इस घर को बनाने के लिए कितना खर्चा आएगा। अब जो आपका फ्रेंड था जो सिविल इंजीनियर था, वो क्या कहता है, देख भाई इसको ज्यादा से ज्यादा नहीं किया 20 लाख लगेगा, इस घर को बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा 20 लाख लगेगा, 20 लाख के ऊपर तो ये घर बनेगा,
इसको ज्यादा से ज्यादा 20 लाख रख सकते हैं, इसके ऊपर ये घर नहीं बनेगा. दिस हैज बिकम योर लोअर बाउंड. दिस हैज बिकम योर लोअर बाउंड. लोअर बाउंड मतलब क्या कि इसके ऊपर नहीं जा सकते. ठीक है, आपको 15 16 लग सकते, 10 भी लग सकते, बट 21 नहीं लग सकते. सो दिस इज नथिंग बट दिस इज डिनोटिंग योर ओमेगा. ठीक है, ये रिप्रेजेंट करता है आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. आर यू गेटिंग द थिंग? सो इसका ग्राफ मैं एक बार अभी फिर से बनाऊंगा. नाउ यू विल एबल टू रिलेट इट. एक आपका रेफरेंस फंक्शन है. ठीक है, दिस इज नोन एज एफ ऑफ एन एंड यू हैव योर ओन फंक्शन दैट इज नोन एज जी ऑफ एन. अब जी ऑफ एन एक सर्टेन पॉइंट पर आने के बाद आपको पता चल गया दैट इज एन ऑफ जीरो की एन ऑफ नॉट कि ये एफ ऑफ एन के ऊपर नहीं रहेगा, इसके ऊपर नहीं जा सकता. इसका ये हो गया लोअर बाउंड. ठीक है, तो दैट इज नथिंग बट योर ओमेगा. ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज, इसको इसके काफी सारा नाम है. इसको कहीं कहीं पे एग्जैक्ट कहा जाता है, कहीं कहीं पे थीटा कहा जाता है, एंड समवेयर इट इज आल्सो नोन एज एवरेज. ये काफी ज्यादा आसान है. अभी आपको दो पता चल गया, तो ये तो इट्स नथिंग. इसका ग्राफ कैसा रहता है? इट्स समथिंग लाइक दिस. यहाँ पे आपको दो रेफरेंस फंक्शन दिए हुए रहते हैं. लेट्स से दिस इज योर रेफरेंस फंक्शन एफ ऑफ एन और इनपुट सेम. ठीक है, यहाँ पे आपका इनपुट है एंड यहाँ पे आपका यू नो दिस इज योर टाइम. एंड दिस इज योर सेकंड रेफरेंस फंक्शन दैट इज एफ. इसको मैं एफ डैश ऑफ एन कहता हूँ, एफ डैश ऑफ एन. क्योंकि इनके अलग अलग स्लोप्स रहते हैं. इवन दो यू आर फीडिंग देम द सेम इनपुट्स, बट इनके स्लोप्स अलग अलग रहते हैं. ठीक है, एंड हियर इज योर ओन फंक्शन. ये आपका फंक्शन है जी ऑफ एन. तीनों को सेम इनपुट्स दिए, बट आपका जो फंक्शन है ना, वो इन दोनों के बीच में लाई करता है. आई कैन रिप्रेजेंट इट एज एफ ऑफ एन. से आपका फंक्शन छोटा है बट इट इज ग्रेटर देन एफ डैश ऑफ एन. ठीक है, तो ये आपको दो लिमिट्स प्रोवाइड करता है कि आप इससे बड़े रहेंगे बट इससे कम रहेंगे. एंड दिस इज डिनोटेड बाय थीटा. ये आपको थीटा बताता है. इसको हम कई बार एवरेज भी कहते हैं, या फिर इसको कई बार हम एग्जैक्ट कहते हैं, और इसको एक और टर्म है टाइट. ये टाइट बाउंड भी कहते हैं इसको, टाइट बाउंड. टाइट बाउंड मतलब क्या? अगर मैं सेम एग्जांपल दूं आपको, ये वाला एग्जांपल, इस एग्जांपल में आप अगर देखोगे तो जो जो उसकी रेंज है ना, जो उसकी रेटिंग है, वो हमेशा इस रेड जोन के अंदर चलती है. इट इज ऑलवेज इन दिस रेड जोन. सो ये उसका क्या हो गया? व्हाट इज दिस? इसका लोअर बाउंड हो गया, इसका अपर बाउंड हो गया. सो इसको हम कहते हैं टाइटली बाउंड. मतलब आपको दो लिमिट्स प्रोवाइड किए जाते हैं. इससे ऊपर तो नहीं जा सकता, बट इससे नीचे भी नहीं जा सकता. मतलब इसका अगर एक और एग्जांपल देना चाहूंगा कि लेट्स से कि हाँ, अभी मुझे पता है कि एट दिस पॉइंट मैं गूगल को क्रैक नहीं कर सकता. आई कैन नॉट क्रैक गूगल. ठीक है, बट मैं मेरी इतनी भी औकात नहीं कि मैं टीसीएस को क्रैक ना करूँ. ठीक है ना, मैं टीसीएस को कर लूंगा आराम से. तो टीसीएस मेरा होगा लोअर बाउंड, गूगल हो गया मेरा अपर बाउंड. इसको नहीं कर सकता, बट हाँ जी, इसको तो एटलीस्ट कर ही सकता हूँ. तो मैं यहाँ पे मिडल में लाई करता हूँ. गेटिंग द पॉइंट ऑफ थीटा? इज इट क्लियर? Yes. Yes. इजी. Yes. आज का सेशन मैंने काफी इजी रखा है, क्योंकि स्टार्टिंग में इसको अगर डिफिकल्ट बना देंगे तो नहीं समझेगा. सो दिस इज व्हाट इट इज. Big O function that describes upper bound, also known as worst case. Worst case scenario, best case scenario हम देखेंगे अभी. And this is your big omega का ग्राफ, and this is your theta का ग्राफ. ठीक है, let's move on to the next slide. Here are some common time complexities. Okay, for that I want to discuss some more things with you. All.
Just a second. Okay, we'll discuss it at the end. No worries. This is like to okay. Now, based on whatever we have learned, whatever notations we have discussed, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के जो मोस्टली यूज होते हैं ना, जो 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 आप मोस्टली देखोगे इनको सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, दैट आर द सिक्स, दैट आर द सिक्स। सबसे पहला है आपका बिग O ऑफ वन, जो हमने ऑलरेडी देखा है। बिग O ऑफ वन क्या था, कांस्टेंट के लिए, जब भी आप प्रोवाइड कर रहे हो इनपुट्स एन, ठीक है, बट आप देख रहे हो कि आपके जो नंबर ऑफ स्टेप्स थे वो कांस्टेंट रह रहे हैं। The number of steps are remaining constant. They are not increasing. They are not affecting. They are not getting affected by the number of inputs you are providing to your program. So at that time, the time complexity is basically constant, and it is represented by big O of n. Getting nothing? It is represented by big O of n. एक और चीज बताना मेरे को कि let's say एक example लेना चाहूँगा मैं. Let me take an example over here. You have an array, and in this you have some elements. This is 5, 7, 9, 11, 15, 19. And your question is that you need to find at what index 15 lies. At what index 15 lies? This is your question. So can anyone tell me what can be the worst scenario? Worst scenario मतलब क्या? Worst scenario in the sense कि आपको at most सबसे ज्यादा कितने steps लग सकते हैं 15 को फाइंड करने के लिए, 15 की इंडेक्स को फाइंड करने के लिए? Can anyone tell? 5 5 लगेंगे या फिर 6 लगेंगे? नंबर ऑफ स्टेप्स 6. 6 हाँ मतलब 6 स्टेप पे वो फाइंड हो जाएगा। What I'm saying is, see, ये आपको पता नहीं है कि अभी 15 एलिमेंट आपका 5th पोजीशन पर, यू आर नॉट नोइंग दिस, आपको नहीं पता है, आपको सर्च करना है इस एरे में। तो बिफोर सर्चिंग इट, आपको सर्चिंग करने के पहले ही किसी ने पूछा, मतलब क्या, आप अगर एक एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हो, आप एक एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हो, यू आर इन इट फर्स्ट प्रोटोटाइप, आप ये आगे जाके पढ़ोगे, यू आर इन द डेवलपमेंट ऑफ इट्स फर्स्ट प्रोटोटाइप। तो आपने आपका पहला प्रोटोटाइप किसको रिप्रेजेंट किया, किसको प्रेजेंट किया? आपके क्लाइंट को या फिर आपके मैनेजर को रिप्रेजेंट किया, आप प्रेजेंट किया उसके सामने। तो मैनेजर आपको सबसे पहले क्वेश्चन क्या पूछता है पता है क्या, कि वर्स्ट केस सिनेरियो में आपकी एप्लीकेशन एट अ टाइम कितने यूजर्स को हैंडल कर सकेंगे, तो एट अ टाइम कितने ट्रैफिक को एक केस हैंडल कर सकते हैं? तो आपने कहा कि बाबा 1 मिलियन को तो आराम से कर लेंगे at a time. You know that 1 million will not be able to come at your application, but at the worst case सबसे ज्यादा कितने लोगों को वो accommodate कर सकते हैं, that is 1 million. So that is your worst case scenario. It is also known as big O. This is your big O वाला काम, क्योंकि आप worst case scenario find कर रहे हो, upper bound find कर रहे हो, you are finding the upper bound. तो सिमिलरली यहाँ पर भी मेरा सेम क्वेश्चन था कि आपको ज्यादा से ज्यादा एट मोस्ट कितने स्टेप्स लग सकते हैं 15 को फाइंड करने के लिए? यू डोंट नो दैट 15 इज एट द 5th पोजीशन, यू आर जस्ट ओरली आई एम आस्किंग यू, फॉरगेट दैट द 15 इज एट 5th पोजीशन। 6 वर्स्ट केस 6 बिकॉज व्हाई 6? क्योंकि आपको पता है कि मेरे पास टोटल कितने हैं एलिमेंट्स? 6 हैं। द नंबर ऑफ इनपुट्स आई एम हैविंग n is having 6, तो मेरे को पता है कि मेरे को अगर फाइंड करना है 15, तो मेरे को एट मोस्ट ज्यादा से ज्यादा 6 स्टेप तो लगेंगे ही लगेंगे। तो मेरे को पता नहीं है ना अभी, इट कैन बी द 15 कैन बी ओवर हियर आल्सो, बट आई हैव कंक्लूडेड कि हाँ भाई 6 स्टेप तो लगने, 7 स्टेप लग सकते हैं क्या? नहीं लग सकते, क्योंकि 6 ही एलिमेंट्स है। तो वर्स्ट केस सिनेरियो में माय टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी 6, दैट इज नथिंग बट बिग O ऑफ n। 6 क्या है आपका? n है, ठीक है, दैट इज नथिंग बट बिग O ऑफ n, क्योंकि n are the number of steps, right? और आपको स्टेप, what are n are the number of inputs, sorry,
दिस इज इनपुट्स एंड स्टेप्स कितने लग रहे हैं आपको? हाउ मेनी स्टेप्स, हाउ मेनी इंस्ट्रक्शंस यू नीड टू परफॉर्म? That is also 6. 6. That is why the time complexity has came over here, big of n. Because your number of inputs is directly equals to steps. This is the linear graph you will form over here. This is the linear time complexity. Why linear time complexity? क्योंकि जैसे जैसे let's say मैंने यहाँ पर 100 numbers डाल दिए, यहाँ पर मैंने 100 numbers डाल दिए. Now can you tell me what will be the worst case scenario? 100. 100. Exactly, क्योंकि आपको steps भी 100 लेने पड़ेंगे. So this is the linear dependency. Here you are having the linear dependency. That's why the time complexity will be big of n. समझा ये? Let's take one more example. One, 5, 7, 9, 11, 15. Now you need to find the index of 11. You need to find the index of 11. But for this time you need to find it. You need to find the best case scenario. बेस्ट केस सिनेरियो मतलब कि आपको नहीं पता कि आपका 11 इस पोजीशन पर है, आपको नहीं पता, बट किसी ने पूछा आपको कि कम से कम मेरे को कितने स्टेप्स लग सकते हैं 11 को One. हाउ 1 व्हाई 1 कैन एनीवन टेल? मतलब वो पहले इंडेक्स पे भी होगा. Least steps. दैट इज द लीस्ट स्टेप. एग्जैक्टली, एक ही स्टेप लग सकता है मेरे को, मतलब कम से कम मेरे को एक स्टेप तो लगेगा ही लगेगा, क्योंकि यू विल हैव टू चेक ना, एटलीस्ट वन पोजीशन तो आपको चेक करनी पड़ेगी, और हो सकता है कि आपको पहली पोजीशन पर 11 मिल जाए, तो आई कैन मेक कि हाँ भाई एक सबसे कम स्टेप मुझे अगर कोई लगेगी तो वो है एक. ठीक है, लेट्स से मैं यहाँ पर और इंडेक्सेस बढ़ा देता हूँ. आई इंक्रीज मोर इंडेक्सेस 17, 21, 15. इस वाले केस में यू हैव टू फाइंड 17. तो यहाँ पर बेस्ट केस क्या आएगा? 1. It will be 1. Steps या फिर instruction you will have to perform is 1. So is it constant? It is not dependent on your number of inputs you are providing. Here the number of inputs are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 inputs you are providing, but steps you are getting 1. So can I say the time complexity for this is n raised to the power 0? That is nothing but 1. Can I say it? This represents Yes. constant time complexity. Is it clear? Yes. Yes. One more example. Last example. Okay. 5, 7, 1, 3, 6, 7. Here you will have to find the average case scenario. Can anyone tell me कि अगर मेरे को इंडेक्स फाइंड करनी है, इंडेक्स ऑफ 7, what will be the average case scenario? मतलब ऑन एन एवरेज कितने स्टेप्स लग सकते हैं? If my n is equals to 7, 4. on an average 4. कैसे कैलकुलेट किया? एवरेज मतलब n by 2, राइट? 7 by 2. 3 एक तो 4 लग सकते हैं, राइट? 3-4 स्टेप्स लग सकते हैं मेरे को एवरेज में, ऑन एन एवरेज. किसको फाइंड करने के लिए? द इंडेक्स ऑफ 7 को फाइंड करने के लिए. ठीक है, लेट्स से इसको बढ़ा देता हूँ मैं, इसको कहते हैं हम 9, 11, 50. अब मेरे को बताओ कि यहाँ पर आप यहाँ पर you have to find the index of 6. You need to find the index of wait for my question. Index of 6 find करना है, and the number of inputs you are given here are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 इनपुट दिए. मेरे को बताओ कि कैसे फाइंड करोगे?
एवरेज की सिनेरियो में कितना एवरेज है, ऑन एन एवरेज कितने स्टेप लग सकते हैं? 5. 5. n by 2 दैट इज 5. यहाँ पर आप देखोगे कि आप कितने भी इनपुट्स ले लो बट आपका फॉर्मूला कंसिस्टेंट है, मतलब द अप्रोच इज कंसिस्टेंट, नंबर ऑफ स्टेप्स यू आर टेकिंग इज कंसिस्टेंट, n by 2 ही रहेगा हमेशा. दिस इज ऑल्सो, this is not constant. I cannot say this is constant because let's say constant किसको बोलते हैं कि वो एक ही नंबर रह रहा है, बट यहाँ पर n जैसे जैसे आपका इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे आपका एवरेज की सिनेरियो में बढ़ रहा है, बट वो बढ़ रहा किस तरीके से, लीनियर वे में. It is increasing in linear way. That's why the complexity of this also is big of n, because it is increasing in linear way. जैसे जैसे आपकी n बढ़ रहे हैं आप n by 2 कर रहे हो, ठीक है ना. पहले वाले एग्जांपल में हमने देखा था कि जैसे जैसे n बढ़ रहा था वैसे वैसे आपके स्टेप्स भी बढ़ रहे थे और वो लीनियर वे में बढ़ रहे थे, डायरेक्टली डिपेंडेंट थे. यहाँ पर भी डायरेक्टली डिपेंडेंट है. गेटिंग द थिंग? दैट्स व्हाई द कॉम्प्लेक्सिटी फॉर दिस इज आल्सो बिग ऑफ n. ये चीज समझो. n is nothing हाँ. but number of steps, ठीक है ना. Getting the thing? And this n is nothing but your inputs. तो inputs पे कैसे आपके नंबर ऑफ स्टेप डिपेंडेंट है, दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू कैलकुलेट. गेटिंग द थिंग? Yes. Yes. नाउ यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस. तो आपको ये चीज समझ गया अभी कि बिग ऑफ एन कब रहता है, जब आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट रहती है. इसका हमने एग्जांपल भी देख लिया. एक और रहता है लॉगरिथमिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, जिसको हम डिनोट करते हैं बिग ऑफ लॉग एन, ठीक है ना. इसकी टाइम, इसका जो ये जो मतलब इस वाले प्रोग्राम में लिखे, ये थोड़ा कम टाइम लेता है, मतलब कांस्टेंट से थोड़ा कम टाइम लेता है. इट टेक्स लेस टाइम एज कंपेयर टू द कांस्टेंट, ठीक है. उसके बाद आगे इसको हम देखेंगे आगे जाके अच्छे से. उसके बाद आता है बिग ऑफ एन. बिग ऑफ एन में देख लिया लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, डायरेक्टली डिपेंडेंट रहती है. जैसे जैसे नंबर ऑफ इनपुट्स बढ़ते हैं वैसे वैसे आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है. दिस इज नथिंग बट योर नंबर ऑफ इनपुट्स, represent this is small n and this is your number of steps, big N. Similar pattern में बढ़ती है. So this is nothing but that at that time your time complexity is nothing but big of n. ये भी आपको क्लियर है, राइट? Yes, any doubt? बिग ऑफ लॉग एन अगर मतलब 1 से कम टाइम लेता है तो वो बेस्ट केस नहीं होगा. नहीं समझा, एक बार फिर से बोलूँ. नहीं आपने अभी बताया ना कि बिग ऑफ लॉग एन बिग ऑफ 1 से मतलब कम टाइम लेता है. टाइम वन नहीं लेता. This one is not representing time. कंफ्यूज हो गए? मैंने पहले ही ओके कहा ओके. ये आपके टाइम को मेजर नहीं करता. हाँ इसको सॉरी. हाँ, you are getting confused, right? Is it fine? गॉट इट. हाँ यस. मुझे पहले ऐसे कंफ्यूज होता था. तो लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया, ये हो गया. देन आता है आपका लॉगरिथमिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. लॉगरिथमिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम जब सॉर्टिंग वगैरह देखेंगे ना, सॉर्टिंग के टाइम पे ये यूज होता है और काफी जगह देखे होंगे आप उसको, बट अभी नहीं. जब सॉर्टिंग वगैरह आएगा तब हम इसको और अच्छे से डिस्कस करेंगे. दिस इज क्वाड्रेटिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. ये हमने देखा था फॉर लूप वगैरह में, जब हमारे पास नेस्टेड फॉर लूप थे. तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ना, वो क्वाड्रेटिक रहती है. इट इज एन स्क्वायर, ठीक है ना. मतलब कैसे बोलूं मैं इसको. I will discuss it. I will discuss it. Just wait for 5 seconds. I will give an example for this. उसके बाद आता है आपका एक्सपोनेंशियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. मतलब आपका टाइम जहाँ पर एक्सपोनेंशियली बढ़ता है, 2 रेज़ टू पावर n के हिसाब से आपका टाइम बढ़ता है. आप उसको इनपुट दे रहे हो बट योर टाइम इज इंक्रीजिंग एक्सपोनेंशियली टू इट, ठीक है. इसको भी हम देखेंगे एग्जांपल में. हालांकि बहुत यू नो दिस इज यूज इन वेरी लेस, मतलब इसको हम ज्यादा यूज नहीं करते, बहुत रेयर यूज करते हैं. एक और आता है दैट इज फैक्टोरियल. कई सारे आते हैं, मतलब फैक्टोरियल को तो हम नेग्लिज, मतलब क्या ही बताऊं मैं, बहुत कम यूज करते हैं, ठीक है. तो बट स्टिल वी विल सी दिस. सो पहला होगा आपका कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. दिस इज नथिंग बट बिग ऑफ एन. देन वी हैव सीन बिग ऑफ लॉग एन, बिग ऑफ एन, बिग ऑफ एन लॉग एन. इसको मैं सिर्फ आपको अभी इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ. इसका हर एक प्रॉब्लम के अंदर कुछ ना कुछ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी, तब मैं उसको उस प्रॉब्लम
के हिसाब से बताऊंगा, ठीक है ना। अभी मैं इंडिविजुअल प्रोग्राम लूंगा सारे के, इस पे तो काफी टाइम लगेगा, ठीक है। अभी सर मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहती है, कुछ कॉमन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ऑर्डर टू बेस्ट टू वर्स्ट, ठीक है। तो जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं ना, ऊपर के सारे बेस्ट है, जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं वैसे वैसे वर्स्ट केस हो रहा है, मतलब जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे वर्स्ट केस सिनेरियो होगा ना, वो गेटिंग द थिंग। तो दिस इज इन दिस वे, यू नो। तो बिग ऑफ वन हो गया, बिग ऑफ लॉग एन हो गया, दिस इज द वर्स्ट केस। एक्सपोनेंशियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा रहती है, ठीक है। मतलब ऐसा समझो कि जब हम यहाँ पर आते हैं ना, तो इट कैन टेक इयर्स टू रन योर प्रोग्राम। अभी समझो, let's move to the next thing. Yeah, here you will get a more brief idea, ठीक है। So this is nothing but comparison of different time complexities based on the number of inputs that you are providing. जैसे जैसे नंबर ऑफ इनपुट्स आप प्रोवाइड कर रहे हो ना, तो वैसे वैसे टाइम कैसे बढ़ते जा रहा है, कैसे कैसे। फॉर एग्जाम्पल 20 इनपुट्स के लिए आप अगर उसका बिग ऑफ लॉग एन कैलकुलेट करते हो, ठीक है ना, बिग ऑफ लॉग एन कैलकुलेट करते हो, दैट इज नथिंग बट 20 नैनो सेकेंड्स। अगर बिग ऑफ रूट एन कैलकुलेट करते हो, है ना, तो इट विल नथिंग बट 22 नैनो सेकेंड्स। फिर से आप बिग ऑफ एन कैलकुलेट करते हो, लॉग एन और एन अलग अलग है, इसको देखेंगे आप, तो फिर दैट इज अगेन 100 नैनो सेकेंड्स। बिग ऑफ एन लॉग एन कैलकुलेट करते हो 450 नैनो सेकेंड्स। बिग ऑफ एन स्क्वायर करते हो, हमने देखा था अभी क्वाड्रेटिक, तो दैट इज नथिंग बट 2 माइक्रो सेकेंड। एन क्यू 40 माइक्रो सेकेंड। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं यार। लेट्स से अभी हमने लॉग एन को देखा था, लॉग एन काफी इजी है, तो लेट्स टेक इट फॉर इट। किसको लेंगे, टेक फॉर दिस 10 raised to the power 8। तो इसको इसका एग्जांपल लेते हैं। लेट्स see if you are able to understand it or not। ठीक है, तो लेट्स से Bhushan has bought a new computer, ठीक है। Bhushan has bought a new computer, very good computer he has bought। So उसको पता है कि एट एट वंस फॉर 1 सेकेंड उसकी कंप्यूटर की कैपेसिटी है दैट एट 1 सेकेंड इट कैन प्रोसेस मे बी 2 into 10 raised to the power 8 इनपुट्स। मतलब 1 सेकेंड के अंदर, फॉर 1 सेकेंड इट कैन प्रोसेस 2 raised to the power 8 इनपुट्स एट अ टाइम। 1 सेकेंड में it can process 2 into 10 raised to the power 8 inputs। It is huge number 1 सेकेंड में, ठीक है। तो can anyone tell me कि what is it? I will go to that example। यहाँ पर कितना है वो, हाँ 10 raised to the power। तो can anyone tell me कि अगर आपके इनपुट्स 10 raised to the power 8 है, the inputs are 10 raised to the power 8, तब कितना टाइम लगेगा प्रोग्राम को। 1 सेकेंड में 2 into 10 raised to the power 8 इनपुट्स लेता है। अगर आपकी इनपुट्स रिड्यूस हो गए 10 raised to the power 8, 0.5 seconds. how many seconds it will take? 0.5। how? 1/2। 1/2 होगा। सिंपल है कि यहाँ पर see if I erase this all, 1 सेकेंड में वो ले रहा था 2 into 10 raised to the power 8, ठीक है। तो 2 raised to the inputs, हमको पता करना है कि कितने सेकेंड में वो लेगा 10 raised to the power 8 इनपुट्स। दैट वाज अ क्वेश्चन, कुछ नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, राइट।
10 raised to the power 8 upon 2 into 10 raised to the power 8. ये कैंसिल हो जाएगा and it will become 1/2, that is 0.5 seconds, right? तो वहीं पे उन्होंने कैलकुलेट किया है. See, here you will find that similarly यहाँ पर you will get 500 मिली सेकेंड में, हमने सेकेंड में फाइंड किया था, राइट? तो इसी तरीके से उन्होंने काफी मतलब सारी की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कैलकुलेट किया, कंपेयर किया, ठीक है? फॉर एग्जांपल हम अगर बिग ऑफ एन की बात करें तो यहाँ पर हमने सिर्फ इनपुट्स लिए थे, हमने काफी कम इनपुट 10 रेज़ टू द पावर 80 इनपुट्स लिए थे, ठीक है? अगर वो इनपुट्स बढ़कर मतलब दैट इज बेसिकली 100 मिलियन, अगर वो इनपुट्स बढ़कर 1 बिलियन हो जाते हैं, दैट इज नथिंग बट 10 रेज़ टू द पावर 9, so the complexity of big of n will be 5 seconds. Then for big of n log n it will be 2.5 minutes. And big of मैंने कहा था ना, जैसे जैसे क्वाड्रेटिक होते जाता है वैसे वैसे वर्स्ट केस सिनेरियोस चलते हैं. तो यहाँ पर 159 years the program will take to get executed. So कितना वर्ष हो गए, मतलब nobody will wait for a program to take 159 years to take its complete execution. Then it for like if you see the time complexity for n cube, big of n cube, तब तो हो रहा है वो 159 eons. एक eons मतलब कोई बताएगा कितने साल होता है? अराउंड बिलियन. 100 बिलियन होता है, ठीक है? और इसका तो पूछे ही मत, मैंने बताया था ना ये हम यूज ही नहीं करते, तो कोई कैलकुलेट ही नहीं कर सकता, इट इज आउट ऑफ आवर सिलेबस. एक्सपोनेंशियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, दिस इज व्हाट नथिंग बट एक्सपोनेंशियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. ये होता ही नहीं है, देखो सारे इसमें नहीं होता, नोबडी कैन कैलकुलेट दिस. सिमिलरली अगर आप देखोगे, अगर आपने इनपुट्स ले लिया 1 ट्रिलियन, दैट इज 10 रेज़ टू द पावर 12, तो बिग ऑफ एन विल बी 200 नैनो सेकेंड्स. आप रूट एन को भी कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है? रूट एन सिंपल है, मतलब क्या करना है आपको, बेसिकली आई विल जस्ट गिव यू द हैंड कि कैसे हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कैलकुलेट और कर सकते हैं. हमने देखा था, वी हैव सीन दिस थिंग कि अगर 1 सेकेंड में it is able to take 2 into 10 raised to the power 8 inputs. तो उन्होंने कहा है कि this nothing but your big O of n, ये आपका big O of n है. अभी आपको निकालना है big O of root n. आपको ये चीज पता है कि 1 सेकंड के अंदर it can take 2 into 10 raised to the power 8 inputs. अभी आपको फाइंड करना है big O of root n. big O of root n फाइंड करना है किसके लिए? 10 raised to the power 8. कैसे करोगे? Can anyone tell? कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, इसको रूट में डालना है. एन की वैल्यू क्या है आपकी? दिस इज योर एन वैल्यू. तो इसको क्या करूंगा मैं, 10 को अगर हम रूट 10 रेज़ टू पावर 8 को रूट में डालेंगे तो व्हाट विल बी? 10 raised to 4. 10 रेज़ टू 4 आएगा, राइट? डाल दो इसके अंदर. Yes. हाउ वी कैलकुलेटेड बिफोर, हमने कैसे कैलकुलेटेड 2 into 10 रेज़ टू पावर 8, इसके ऊपर डाल दो 10 रेज़ टू पावर 4, वो आ जाएगा आपका आंसर. नैनो सेकंड या माइक्रो सेकंड में जब कन्वर्ट कर दो, सिंपल आ गया आपका क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, आ गया आपकी बिग ऑफ रूट n. सिमिलरली यू कैन कैलकुलेट फॉर बिग ऑफ n स्क्वायर. सिमिलर वे में आप बिग ऑफ n स्क्वायर भी कैलकुलेट कर सकते हो, राइट? व्हाट इज दिस बिग ऑफ n स्क्वायर? क्या करना है, सिंपल है कि आपका पहले क्या था, 1 सेकंड के अंदर कितना था? 2 into 10 raised to the power 8. ये आपका बिग ऑफ n है. अभी क्या करना है, यू हैव टू फाइंड बिग ऑफ n स्क्वायर फॉर व्हाट? 10 raised to the power 8. कैसे करोगे? इसका क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे. स्क्वायर करने के बाद क्या होगा? ये मल्टी into power 16. 10 raised to 16. 10 रेज़ टू 16. 10 रेज़ टू 16. अभी आपको क्या फाइंड करना है? 10 रेज़ टू 16 फाइंड करना है. इसके ऊपर क्या आएगा? व्हाट विल बी
इसके नीचे क्या आएगा, सॉरी नीचे क्या आएगा, ये 10⁸ 2 2 into, into 10⁸. ठीक है करो कैंसिल, 10⁻²2 अपॉन 2, 100 अपॉन 2 आ जाएगा 50, सिंपल है। नहीं, ऊपर 10⁸ आएगा. सॉरी 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 सॉरी, 16. माय बैड माय बैड माय बैड, 10⁻16 था ऊपर राइट, और नीचे 10⁸8 था इंटू 2 था, मैंने उसको 8 वन साइड 8 टू सा कर दिया so it will be 10⁸8 and here it will be 2, calculate and get the answer. This is how we calculate the time complex. अभी आपको कन्वर्जन समझा थोड़ा थोड़ा, एटलीस्ट पूरा नहीं समझेगा, पूरा समझा, मेरा एम ही नहीं है आपको पूरा समझाना, आपको सिर्फ थोड़ा थोड़ा समझाना, थोड़ा थोड़ा आइडिया आ रहा है कि कैसे हो रहा है बेसिकली, और आई एम Yes. एबल टू कैलकुलेट, इजी है इजी, आज के लेक्चर में Yes. तो एडवांस जाना ही नहीं, इवन तो आई एम टेकिंग सम एडवांस थिंग्स सो दैट एटलीस्ट वो आपके कान पे पड़े, दैट इज इट, दैट इज माय अल्टीमेट। ऐसे ही हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करते हैं जब भी हम, इस क्वेश्चन का आंसर मैंने अभी दे दिया, जब भी हम कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जाएंगे, लेट्स सपोज हम लीड कोड पे जाएंगे, वहां पर भी क्या रहता है पता है क्या, अगर आपको आपके प्रोग्राम में लेट्स से आपकी वहाँ पर टाइम कंस्टेंट दिए, आप ये आप एक प्रोग्राम सॉल्व कर रहे हो बेसिकली, एंड आपको वो 1 सेकंड के अंदर सॉल्व कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट, कि आपको उसके अंदर नंबर ऑफ स्टेप्स कितनी लिखनी है, 2 इंटू 10⁻⁸ इतने आपको नंबर ऑफ स्टेप्स, नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस आप लिख सकते हो, नंबर ऑफ लाइन नहीं कह सकता, नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस आप इतने लिख सकते हो, अगर आप इससे ज्यादा लिख दिया आपने तो आपको एक एरर रहेगा, व्हाट इज दैट एरर, कैन यू नोट दैट, TLI, टाइम लिमिट एक्सीडेड, TLE रहता है शायद से, टाइम लिमिट एक्सीडेड, TL, गेटिंग द थिंग, ये हम देखेंगे बट अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन है, बट एटलीस्ट यू आर एबल टू गेट फैमिली, तो तब हमको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का इम्पोर्टेंट पता चलेगा, तो यहाँ पर अब हमको तो दिखेगा कि हम कितने अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं बिटवीन 10 लाख 1 करोड़ यूजर्स जो रहेंगे उस परफॉर्म पे प्लेटफॉर्म पे, तो वहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऐसी कैलकुलेट होती है, यू आर बीन रेटिंग ऑन दिस बेसिस ओनली, कि आपका कोड कितना प्रोफिशिएंट है, उसने कितने नंबर ऑफ स्टेप्स कम परफॉर्म किए हैं, everything is calculated. If I take a simple example to calculate the time complexity, uh, let's write our own code, to be random code लिखते हैं, int main, int a is equals to 10 for int I is equals to 1, I is less than 10, 5 plus plus, यहाँ पर तो यहाँ पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसको हम काउंट नहीं करते, जब भी कोई डिक्लेरेशन रहता है इसका एक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी काउंट होता है, ठीक है ना, फिर फॉर लूप का नंबर ऑफ स्टेप्स कितनी इसके अंदर परफॉर्म हो रहे हैं, 10, इसको हम काउंट करते हैं, सी आउट का हम बेसिकली काउंट नहीं करते, डिक्लेरेशन को काउंट करते हैं, डिक्लेरेशन इनिशियलाइजेशन को, नंबर ऑफ फॉर लूप कितने टाइम रन हो रहा है वो कैलकुलेट करते हैं, देन अगर आपकी इफ वगैरह स्टेटमेंट है तो उसको हम कंसिडर करते हैं, ऑब्जेक्ट्स वगैरह को भी कंसिडर करते हैं, बेस्ड ऑन दिस ओनली द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज बीइंग कैलकुलेटेड, नॉट कि आपने कितना बड़ा कोड लिखे दैट डजंट मीन कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा होगी, इनपुट्स कितने ले रहे हो, वेरिएबल्स कितने डिक्लेयर कर रहे हो, ठीक है, उसके बाद फॉर लूप कितना चल रहा है आपका, कितने स्टेप्स चल रहा है आपका फॉर लूप, देन कितने कंडीशनल लिख रहे हो आप उसके अंदर, कितने ऑपरेटर्स कॉल कर रहे हो, बेस्ड ऑन दैट टाइम कॉम्प्लेक्स, ये इसको मैं इन डेप्थ करूंगा बट नहीं अभी नहीं करना चाहता इसको, ठीक है ना, क्योंकि ये सिर्फ इंट्रोडक्टरी पार्ट है, इतना अगर आपको समझ गया तो we have concluded our today's class. That is what I was expecting for today's session. एक बार फिर से मैं रिवर्स इन शॉर्ट, I will not take much time. इन शॉर्ट में एक बार फिर से बताऊंगा, हमने देखा कि how to measure how time efficient a piece of code is based on number of inputs a program is taking. We are able to measure how an efficient our program is basically, right? Or we can also define this time complexity as the rate at which our program is growing.
the rate at which a program is growing based on the number of inputs you are providing to it. Another, हमने देखा कि it is not dependent on the language, it is not dependent on the machine, it is not dependent on their internet speed. ठीक है, ये चीज हमने देखी. What's the right approach? The right approach is that we can find a formula. Basically, we have seen the notation that is nothing but a form of formula only. To find the number of steps that are needed to be done. तो वहाँ पर हम क्या basically denote कर रहे थे? The formula was denoting what? वो वगैरह कुछ नहीं था. वहाँ पर जो n क्या denote कर रहा था हमारा number of steps that are needed to be done by the code for given inputs. Now I hope this definition is making sense to you all. Is it making sense? Hello. Now is it Yes. are you Yes. able to Yes. now just read this. Now you will be able to get it in a more better. Then you have this is the definition. Time complexity is the measure of how the running time of an algorithm grows. Running time जो running time रहता है ना जब run होता है हमारा प्रोग्राम वो कैसे increase होता है? Based on what? Based on the number of inputs you are providing to it. The size of the input increases. उसके हिसाब से हमारी time complexity भी increase होती है. We saw an example, basic example. स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का भी काफी हद तक सेम है. स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की इन डेप्थ में मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि इतना ज्यादा यूज नहीं होता है. स्टिल आई विल टेक अ बिट अबाउट इट इन टुमारो सेशन. हमने फिर एरेज और रनिंग एरेज का देखा इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का. देन वी हैव सेट डिफरेंट नोटेशंस. 3 नोटेशन वैसे 5-6 रहते हैं. 5 रहते हैं बेसिकली. स्मॉल ओमेगा रहता है, स्मॉल ओ रहता है. तो वो कुछ काम नहीं उसका पढ़ने के लिए. बेसिकली 3 ही पढ़ेंगे. सबसे ज्यादा हम पढ़ेंगे आपको हर एक मतलब हर एक क्वेश्चन को विजुअलाइज करना है थ्रू द वर्स्ट केस ऑफ बिग ऑफ. ठीक है, थ्रू द वर्स्ट केस ऑफ बिग ऑफ. इसको आपको हर एक क्वेश्चन को विजुअलाइज करना है. उसी को हम ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे. ठीक है, तो वैसे तो हमने 3 पढ़े. बिगो पढ़ा, उसके बाद ओमेगा पढ़ा, उसके बाद थीटा पढ़ा. ठीक है, बिगो को हम ज्यादातर वर्स्ट केसेस में देखेंगे. बेस्ट केस एंड यू नो the average case is most of the time it is even if it is constant or it is directly linear. बट एन वर्स्ट केस क्यों देखते हैं? इसका इंपॉर्टेंस क्या है? क्योंकि हमको पता करना रहता है कि वर्स्ट सिनेरियो में व्हाट कैन बी द प्रिकॉशन दैट वी कैन टेक. ठीक है ना, उस चीज तक नहीं चाहिए हमारी चीज. वर्स्ट से वर्स्ट सिनेरियो क्या रहता है उसको हमको पता रहना चाहिए, इसलिए उसको इतनी ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है. तो ये देखा. उसके बाद सम बेसिक्स हमने टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज को देखा. दैट इज कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. उसके बाद लॉग एन देखा. उसके बाद एन देखा. उसके बाद n log n देखा, n स्क्वायर देखा. एंड एक्सपोनेंशियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. एक्सपोनेंशियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती ही नहीं है ज्यादा यूज. ईयर्स लगते हैं उसको. ठीक है, बट इट इज देयर. एक फैक्टोरियल भी रहता है, उसको तो फायदा नहीं यूज कर लिया. फिर हमने कंपैरिजन देखा उसके बीच में कि कैसे कैसे टाइम ग्रो हो रहा है बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ इनपुट्स दैट इज इंक्रीजिंग. ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने आज के इसमें देखी. कल और थोड़ा इन डेप्थ देखेंगे. कल मैथमेटिकल साइड में जाएंगे कि एक्चुअली हम उसको पेन और पेपर में कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या कैलकुलेट करना चाहिए. सारा इंपॉर्टेंस कल देखेंगे. आज का थोड़ा हैवी हो जाता है लेक्चर, इसलिए मैंने उसको सोचा कि कल देखेंगे. टुमारो विल बी हैविंग द क्लास. टुमारो यू विल बी हैविंग द क्लास. लेट मी मेक इट वेरी क्लियर. कल क्लास रहेगी. सो क्योंकि ये मेरे को कंटिन्यूस लेना है, नहीं तो एक गैप आ जाएगा ना बीच में. अभी इतने दिनों का गैप आया, यू विल फील दैट माय इंग्लिश हैज बिकम वर्स and the teaching style is also, you know, it doesn't come that frequent. क्या कहते हैं उसको, fluent. So if it is the things are continue, I will also be able to improve myself. Yeah, any doubt? कल थोड़ा जल्दी लेक्चर रखो ना प्लीज. प्लीज प्लीज, कल छुट्टी भी है. ऐसा नहीं रहता ना, बट मेरे भी कुछ काम रहते हैं यार. मैं फिर मॉर्निंग में रख दो ना क्योंकि मैं शाम को बिजी हूँ थोड़ा. रिकॉर्डेड देख लेना.